of products to all consumers in the world, but scientific health management to the public. At the early stage of development in 1999, he decidedly invested in and established Tianjin Tianshi College. The college was approved as a full-time general four-year college by the Ministry of Education of China in April of 2008, which is the only private university in Tianjin. Based on Tianjin Tianshi College, Tianyuan University was upgraded and covers an area of 3.2 square kilometers with an overall building area of 2.1 million square meters and a planned recruitment of 30,000 students. The university has School of Medicine, School of Engineering, School of Science, School of Business, School of Liberal Arts, School of Art and Design, with more than 50 college specialties covering such disciplines as science, engineering, medicine, management, literature, law, and art. The campus has a well-developed transportation network and supporting facilities nearby, which perfectly integrates the campus with the city. The campus plans to take example by the experience of world-famous universities. The overall design is grand and magnificent. The architectural style shows unique ingenuity, and the gardens and sceneries are natural and harmonious. The teaching buildings of schools are well laid out and exquisitely designed, and not only their exterior design, interior decoration, and color scheme match with the characteristics of different disciplines, but also reflect the rationality of modularized spatial planning, which can freely change the combination of modules to meet the special needs of teaching and scientific research activities in different fields. Both exterior and interior have fully reflected the highlights of ideological and cultural pursuit of different fields and the perfection of functions. The main structure blends perfectly with surrounding facilities and garden landscape, providing the faculty and students with a self-sufficient, comfortable, and intimate physical environment to undertake teaching, learning, and researching activities. The central area of the campus is located in the center, very expansive, with artificial rockworks and streams, which constitute the central part of Tianyuan University. The museum is at the bottom floor of the central area, combining natural sciences with humanities, historical culture with science and technologies. As an important symbol of knowledge and academia, the library is located at the heart of the campus. It is designed to look like a cube, which suggests the interior quality of vigor and stability. Inside the library, the main color is employed as indication. Organization of spaces and floors and individualized design are based on the reading and communication requirements of different disciplines. In order to be in line with the patterns of researching and learning activities of individual readers, to ensure sustainable, stable, and healthy progress of college activities, Tian's Group founded Tian's Education Fund, used for rewarding teachers for scientific research and fellowship, and subsidies for students. In order to advance scientific research and talent cultivation on the right track, meanwhile, the university tries to contact with organizations and institutions committing to education for more support, which will be intended only for special projects of the university to ensure sound and advanced educational facilities. Buildings around the library are modern architectured facilities that provide systematic and complete services for large-scale conferences, student activities, administrative management, and international academic communication. The cultural atmosphere of the Student Activity Center, which stimulates communication of ideas and creativity, is shaped like spirits of nature, humanity, future science and technology, as well as academia.
Management Center features details of gravities, elegance, and exquisite craftsmanship, and represents a magnificent and unique internal environment. The International Conference Center is meeting place of wisdom and ideas. The interior uses mainly beige woodwork decoration and gray concrete, communicating a sense of elegance and grandeur. The inner space of the Academic Communication Center is organized according to different functions, introducing outdoor landscape and daylight into the room, creating an intimate and natural environment for communication. University Stadium, Phoenix Nest is nimble, dynamic, filled with vigor and full in shape. Its architectural shape combines openness and inclusiveness. The stadium can hold various sports contests and major events. The Longfeng River near the campus is an abundant source of the hydrographic net inside the campus, interwoven and extending in all directions. All kinds of feature landscapes are exquisitely laid out along the hydrographic net, interlinked in orderly rows. Teachers and students can stroll along the river or take a boat. It is a rare scenery that can purify your mind and help you focus on your study. Both Chinese traditional culture and a modern scientific spirit are integrated into varied bridges, buildings, sculptures, and landscapes in this campus. With its beauty, gentleness, and dynamism of the time, the campus can arouse the admiration for traditional culture and pursuit of modern civilization in young students. Tianyuan University follows the development law of higher education, harmony with civilization, unity with environment, and prosperity with progress. Adheres to the strategy featuring internationalization, socialization, and modern development. It focuses on undergraduate education, energetically advances graduate education, and strives to develop education for foreign students. A comprehensive, special, and advanced university for applied technology will be built. Tencent Group creates wealth amid the torrents of global markets, develops educational cause with its experience accumulated in many years. This is an expression of entrepreneurs' conscience and ambition. Tianyuan University will add a powerful technological wing to the third pioneering work of Tian's, allowing Tian's to flying higher and further in a broader sky. हेलो लीडर्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मेरा नाम तनु सचान है। मैं प्रेजेंट टाइम स्टडी के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत इस बिजनेस को ज्वाइन किया और इसको मैं कर भी रही हूँ। और मैं नौबस्ता कानपुर से बिलोंग करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगी कि मेरे सपने वास्तव में बहुत बड़े हैं, इसीलिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। और मुझे पता है कि अगर मुझे नौकरी मिल भी गई तो यहाँ से सपने जो है नौकरी करने से कभी पूरे नहीं होते हैं। और नौकरी भी आज के टाइम में बहुत ही मुश्किल से मिलती है। और रियल लाइफ में यह जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपनी जो प्रेजेंट टाइम अपनी लाइफ चल रही है तो इसको चेंज कर सकते हैं, एक लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग बहुत ही बड़े बड़े अपने सारे सपने वर्क करके पूरे कर सकते हैं। और आज के एलडीपी सेशन की बात करें तो बहुत ही ग्रेट हमारे मेंटोर का सेशन है। और सर प्रेजेंट टाइम बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट टीचर हैं। और सर हम लोगों को बहुत ही ग्रेट नॉलेज देते हुए बहुत ही अच्छे से बताते हैं हर एक चीजें। और सर प्रेजेंट टाइम सिल्वर लॉयन है, मिस्टर अरविंद सिंह कुशवाहा सर। तो आप सभी की मैं जोरदार तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी। जितने भी कोस्ट लीडर हैं, मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ, सर को बहुत ही जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम।
थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, ग्रेट लीडर, वेलकम। गुलवेज जी। यस सर। एक आधुनिक सिंह के नाम पे ना उनको पोस्ट बना दीजिए आप। आधुनिक सिंह, यस सर, डन। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। इसी से करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद। पैनल पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। और साथ में दोस्तों, मैं सबसे पहले आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने परम पिता परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसकी वजह से आज मैं इस दुनिया में हूँ। और उसके बाद मैं अपने माता पिता को बहुत 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 धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस लायक बनाया कि मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रहा हूँ। और साथ में मैं इस सिस्टम को बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया। और मैं ट्रिपल एस सिस्टम के जन्मदाता और हमारे महागुरु पांडे सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और प्रणाम करते हुए मैं इस सेशन को शुरू करूंगा। और साथ में, चूंकि अगर ये ट्रिपल एस सिस्टम का जन्म नहीं हुआ होता तो आज हम अपने घर पे या अपने कहीं भी प्लेस पे, किसी भी प्लेस पे बैठकर आज बहुत ही अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हैं और अपने बिजनेस को बूम कर पा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स को मैं सुन पा रहा हूँ, उनसे उनके एक्सपीरियंस को ले पा रहा हूँ, उनके बारे में जान, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सिस्टम की देन है कि सर की वजह से आज हम लोग इतना अच्छा नॉलेज ले पा रहे हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस और कैसे लोग अपने आप को काम। थैंक यू सर, हमारे महागुरु जी। तो अगर ये सिस्टम, इस ट्रिपल एस सिस्टम का जन्म नहीं हुआ होता तो आज हम जो आज सीख पा रहे हैं वो संभव नहीं था, और केवल हम एक सीमित दायरे में बंधे रहते, मतलब हम जैसे कर रहे हैं उसी तरह से करते रहते। और रियल में कहा जाता है कि ये जो टेक्नोलॉजी होती है, जैसे एक व्यक्ति हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन वो एक व्यक्ति अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेगा तो वो हर व्यक्ति के पास पहुंच सकता है। यानी अपनी चाहे कितनी बड़ी टीम हो, कुछ भी हो, कितना बड़ा बिजनेस हो, हम हर व्यक्ति के साथ रूबरू हो सकते हैं टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेकर। तो वही एक पीरियड आया, कोविड का पीरियड आया, और हमारे महागुरु और लीडर, एक लीडर का जो लीडर की जो पहचान होती है। गुड मॉर्निंग अनीता जी। तो एक लीडर की जो पहचान, लीडर का मतलब ये नहीं है कि केवल हम नेता हो गए, लीडर हो गए। लीडर का मतलब होता है जिम्मेदार व्यक्ति, और जितनी बड़ी लीडरशिप, जितना बड़ा हमारा पद, उतनी ही बड़ी हमारी जिम्मेदारी। तो दोस्तों, लीडरशिप का मतलब और लीडर का मतलब होता है जिम्मेदारी। और हमें समझना चाहिए कि हमारे लोगों को क्या आवश्यकता है। अगर हम उस पर काम कर लेते हैं तो ही हम एक्चुअल में लीडर हैं। तो ये हमारे महागुरु पांडे सर की देन है, जैसे कि जिनकी वजह से आज हम सब लोग
बहुत तेजी से बिजनेस को कर पा रहे हैं। और दोस्तों दूसरी बात, मैं सेशन को शुरू करने से पहले जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन दोस्तों जब तक ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना कोई मंजिल पाना असंभव है। यानी जब तक हम सीखते हैं, जो भी हम सीखते हैं उस ज्ञान को अगर हम व्यवहार में नहीं लाते, यानी हम उस सीखने के बाद अगर लोगों तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं, मेंटर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, हम उनसे सीख सकते हैं, वो हमें सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं चीजों को लेकर के हम लोगों तक पहुंच जाएं, यानी उस संदेश को, उस मैसेज को, उस ज्ञान को, उस जानकारी को अगर लोगों तक पहुंचा देंगे तो हम बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हैं। और यहीं पर हम पीछे हो जाते हैं, यहीं पर हम पीछे हो जाते हैं कि हम उस ज्ञान को लेकर नहीं जाते, लोगों को बताने नहीं जाते। तो दोस्तों आज हम तो ये हो गया कि ज्ञान जो हम ले रहे हैं उसे हमें लोगों तक जरूर लेके जाना है। और आज हम बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हम केवल बात करेंगे आपसे, ना तो हम किसी को कुछ सिखा सकते हैं, सिर्फ कुछ चीजें हैं जिनको करते हैं, हम लोग करते हैं और करके आगे बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज ये जानेंगे कि वास्तव में जो हमें सक्सेस मिलती है, सक्सेस मिलती कैसे। तो सबसे पहले तो देखिए, हमारा जो माइंड होता है ना, माइंड, और माइंड को हम ट्रेन नहीं कर पाते हैं, माइंड को हम ट्रेंड नहीं कर पाते हैं। और माइंड हमारा किंग होता है, माइंड इज द किंग, माइंड ही हमारा किंग होता है। और दिमाग हमारे दो होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो काम करता है थिंकिंग का, प्लानिंग का, एक्शन का, ये काम करता है। लेकिन जो रियल में हमें सफलता मिलती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही मिलती है। तो हमें और दूसरी बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड, जैसे आप देखिएगा, जैसे हम सांस लेते हैं, इसके लिए सोचना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक होता है। तो सोचना, जो हम प्लानिंग करते हैं, थिंकिंग, यानी प्लानिंग भी नहीं करनी है कि मैं इतने मिनट के बाद सांस लेनी है, ये प्लानिंग नहीं करनी है। तो ये काम जो थिंकिंग, प्लानिंग और एक्शन का होता है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड का काम होता है। और सबकॉन्शियस माइंड को हम केवल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसको हम ऑर्डर नहीं दे सकते। कॉन्शियस माइंड को हम ऑर्डर देते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की हम प्रोग्रामिंग करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की जब हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं तो हमें एक्चुअल में सक्सेस मिलती है। अब जैसे मान लीजिए, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सोचने का काम करता है और बहुत थोड़ा सा होता है, लेकिन हम रियल में सक्सेस कैसे पाते हैं? जब उसकी जो भी हम सोचते हैं उसकी प्रोग्रामिंग, यानी सबकॉन्शियस माइंड में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। हम सबकॉन्शियस माइंड को हम कह सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर, इसकी हमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो सॉफ्टवेयर की जब प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, तो हमें सक्सेस मिलती है। अब जैसे हमारा ब्रीदिंग का है और जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, किडनी, लीवर, लंग्स, ये सब ऑटोमेटिक काम करते हैं। लोगों को अट्रैक्ट करना, आइडियाज और एनर्जी, ये तब आती है जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। और दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? ये 5 चीजें होती हैं जिनसे हम सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे सबसे 5 चीजें होती हैं जिनसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। इसमें आपका रिपीटेड थिंकिंग, रिपीटेड स्पीकिंग, रिपीटेड लिसनिंग, रिपीटेड फीलिंग और रिपीटेड वाचिंग। मतलब ये 5 चीजें होती हैं, इनको हम जितना रिपीट करेंगे उतना ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। और जब हम इसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, यानी अगर हम ये काम कर रहे हैं, किसी चीज को जो हम पाना चाहते हैं उसकी हम बार बार उसको हम सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, और जो हम बनना चाहते हैं उसे हम आज फील करते हैं कि आज हम वैसे हैं। अगर हम राजा बनना चाहते हैं
तो हमें आज से राजा का एक्शन करना पड़ेगा, राजा की सोच डेवलप करनी पड़ेगी, सब कुछ हमें वैसा ही करना पड़ेगा। तो जब हम वैसा ही करना शुरू कर देते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। और जब इसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है, यानी जब हम इतना काम करने लगते हैं, जैसे हमने ड्रीम को गोल में बनाया, क्योंकि ड्रीम और गोल में बड़ा डिफरेंस है, लेकिन लोग ड्रीम और गोल को नहीं समझ पाते हैं। तो जब हम इतना काम कर लेते हैं, यानी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, यानी हम रिपीटेड थिंकिंग, रिपीटेड लिसनिंग, रिपीटेड फीलिंग, रिपीटेड वाचिंग, ये हम करने लगते हैं। जब ये करना शुरू कर देते हैं तो हमें क्या आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, नए नए आइडियाज आते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ता है, जोश आता है। और दूसरा, हमें राइट पीपल राइट टाइम पर हमारे साथ आने शुरू हो जाते हैं। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं तो राइट पीपल एट द राइट टाइम, यानी राइट पीपल अटैक एट द राइट टाइम, हमें सही लोग सही समय पर मिलना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, दूसरा काम हमें क्या करना है, क्योंकि जो चीजें हमारे दिमाग में है, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम जब रिपीटेड थिंकिंग करते हैं तो इनकी हमें प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। जैसे हमारे गोल है, गोल हमें बनाने पड़ेंगे। गोल से जब हम बनाएंगे, और गोल कैसे बनेंगे, जब हमारा सपना होगा तो गोल बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमें सपने बनाने, और बड़े बड़े सपने बनाने। क्योंकि दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि जब तक हमारे सपनों पर एक आम आदमी हंसने ना लगे तो समझिए अभी सपना हमारा छोटा है। और जब हमारे सपने पर एक आम आदमी, क्योंकि आम आदमी जैसे मान लीजिए हमारे लेवल का कोई आदमी, और हम उसके सामने बात कर रहे हैं, या हमसे नीचे का व्यक्ति है कोई, और हम उसके सामने बात कर रहे हैं, मान लीजिए आज हम हमारी अर्निंग मान लो किसी व्यक्ति की 50,000 है, 50,000 की अर्निंग है, और हम किसी व्यक्ति, एक आम आदमी के सामने बात करें जिसकी इनकम हमसे भी कम हो या हमारे बराबर, और हम उससे बात कर रहे हैं कि हम 5 साल में अपना चार्टर प्लेन लेंगे, तो वो हंसेगा, क्योंकि वो आम आदमी, वो हंसेगा। और हंस रहा है तो इसका मतलब हमारा सपना सही है। तो जब तक हमारे सपनों पर लोग हंसे ना, तब तक समझिए कि हमारा सपना छोटा है। अब हम सपना बनाएंगे, फिर हम उस सपने को गोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ड्रीम के साथ जब डेट मिल जाता है तो वो हमारा गोल बन जाता है। ड्रीम के साथ डेट आ जाती है। तो अब हम गोल बनाएंगे, और गोल को हम बार बार रिपीट करेंगे, उसकी रिपीटेड लिसनिंग करेंगे, थिंकिंग करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, वाचिंग करेंगे, फीलिंग करेंगे, ये सारे काम हम करेंगे। तो हमारे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसकी प्रोग्रामिंग होगी। और एक समय आएगा, जब ये आप रोज रोज करेंगे तो एक समय आएगा कि राइट पीपल आपके साथ सही समय पर, सही लोग आपके साथ आने शुरू हो जाएंगे, आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ये काम आपको, हम सभी को करना है। इसके बाद दोस्तों, कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं, रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं। अच्छा, यहाँ पे जानते तो सभी लोग हैं कि गोल जो हमारे हैं उसमें सबसे पहले हमारे शॉर्ट टर्म गोल हमें बनाने चाहिए। इसके बाद शॉर्ट टर्म के पास मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और अल्टीमेट गोल, ये 4 तरह के गोल बनाने चाहिए कहीं भी। और गोल और जो हमारे ड्रीम होते हैं, बहुत कम से कम 5-6 तरह के ड्रीम होते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। अब इसके बाद कुछ रिक्वायर्ड स्किल होती है टू बी ए सक्सेसफुल लीडर। एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स होती हैं। जैसे सबसे पहला स्किल होता है, बहुत सारी स्किल है, तो अब इसमें आता है पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें एक सक्सेसफुल लीडर बनाती हैं। तो हम जैसे पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम वास्तव में किसी भी व्यक्ति का अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है और वो पॉजिटिव है, क्योंकि बिलीफ सिस्टम जब हमारा स्ट्रांग हो जाता है तो हम बड़े बड़े अपने गोल्स अचीव कर लेते हैं। और बिलीफ सिस्टम क्या होता है, बिलीफ सिस्टम होता है कि आप चीजों को इतनी बार सोचें, इतनी बार करें, इतनी बार महसूस करें कि वो आपको सच साबित होने लगे, वो आपके लिए शाश्वत सत्य हो जाए। यही हमारा बिलीफ सिस्टम है। अब जैसे आप समझ सकते हैं कि जब हाथी का जैसे बच्चा होता है,
और वो छोटे से ही, जैसे ही वो पैदा होता है तो उसको छोटे से ही उसमें उसके पैर में जंजीर या रस्सी डाल दिया जाता है, और पहले थोड़ी सी वो कोशिश करता है तोड़ने की, तो वो तोड़ नहीं पाता, और वो जंजीर जो है उसके पैर में गड़ने लगती। तो धीरे धीरे वो, या ऐसा उसके साथ लगातार होता है। तो जब वो बड़ा हो जाता है, जवान हाथी हो जाता है, उस समय उसको आप केवल उसके अगर पैर में केवल उसको एहसास होगा कि उसके पैर में कुछ बंधा हुआ है, सड़ी रस्सी आप बांधेंगे तो भी वो वहां से उस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी प्रोग्रामिंग हो गई, उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया कि हम बहुत दिन से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अभी तक नहीं टूटी, तो अब भी हम इसे तोड़ नहीं पाएंगे। ये बिलीफ सिस्टम होता है। और बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करके, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 1954 में रॉजर बैनिस्टर ने जो 1 माइल्स का रिकॉर्ड था, वो भी उन्होंने क्योंकि पहले 4 मिनट का रिकॉर्ड था, और लोगों का दावा था कि अब 4 मिनट से पहले ये संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने 4 मिनट से भी कम समय में इस मील के रिकॉर्ड को तोड़ा। केवल उन्होंने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग किया, और प्रैक्टिस करते समय, मतलब उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया, इतना उसको रिपीट किया कि वो 3 मिनट 59 सेकेंड में उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया 1 माइल का। तो ये दोस्तों हमारा बिलीफ सिस्टम। अब हमें बिलीव किस किस पे करना है, जैसे हम जो सबसे पहले तो हमें अपने आप पर विश्वास करना, बिलीव ऑन सेल्फ, हमें अपने आप पर विश्वास करना। लोगों को अपने आप पर ही भरोसा नहीं होता है कि मैं कर पाऊंगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले ही आपसे कहने लगे कि मेरे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे। और दोस्तों, जिसे अपने आप पर भरोसा नहीं होता वो कभी कर भी नहीं पाता। तो हमें अपने आप पर भरोसा करना है, और गॉड पर भी भरोसा करना है। एक गॉड का मतलब एक अल्टीमेट पावर, एक कुछ भी अल्टीमेट पावर, यूनिवर्स, नेचर, इस पर भी विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, एक अल्टीमेट, एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ बैलेंस किए हुए। तो हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा, गॉड पे करना होगा, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करने आए उस पर भी हमें भरोसा करना पड़ेगा। लोगों को, हम काम तो कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है लोगों को भरोसा ही नहीं होता, वो खुद ही भरोसा नहीं कर पाते हैं कि इस बिजनेस में हम कहां तक जा पाएंगे। या कभी कभी तो लोग कहते हैं, वो कहने लगते हैं कि ऐसी कंपनियां तो आती रहती हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। तो हमें अपने पर विश्वास करना, कंपनी पर विश्वास करना, और प्रोडक्ट पे विश्वास करना। और प्रोडक्ट पे विश्वास कब आएगा? जब आप उसके सेल्फ यूजर होंगे, प्रोडक्ट पे विश्वास करना होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जब हम कोई भी व्यक्ति हमसे पूछेगा कि क्या ऐसा हो सकता है, ये प्रोडक्ट ऐसा करता है, तो आप बगले झांकने लगते हैं या अपलाइन को फोन करते हैं, तो भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो हमें प्रोडक्ट पे विश्वास करना है। प्रोडक्ट पे विश्वास होगा जब हम प्रोडक्ट के अच्छे यूजर होंगे। तो हमें सबसे पहले हमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट का यूजर बनना है, ये करना पड़ेगा। और ये हमारा पहला कोर स्टेप भी है, यूज 100% प्रोडक्ट। मतलब अगर हम बिजनेस करने आए हैं, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि कोई भी एक बिजनेसमैन है, वो किसी भी चीज का बिजनेस कर रहा है या कोई मैन्युफैक्चरर है, तो वो अपना ही प्रोडक्ट यूज करता है अगर वो ईमानदार है और अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है। नहीं तो ट्रेडिशनल मार्केट की हालत बहुत खराब है। लोग जहर बना के मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन अपना खुद नहीं यूज करते हैं। जहर बनाकर मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन यूज नहीं करते। तो डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों ये बहुत बड़ा एक बहुत अच्छी एक यूनिक विशेषता है, यूनिक फीचर है कि हम इसके खुद, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में खुद ही ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, खुद ही उसके प्रमोटर होते हैं। और क्योंकि हम सबसे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर क्यों होते हैं? क्योंकि हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं। यूज करने के बाद हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में तो झूठा प्रचार होता है, लेकिन हम यहाँ पे खुद यूजर होते हैं और विश्वास के साथ उसका प्रमोशन करते हैं। तो प्रोडक्ट पे विश्वास करना होगा, हमें प्लान पे विश्वास करना होगा, और अपनी अपलाइन पे विश्वास करना होगा। अपलाइन पे भी हमें भरोसा करना पड़ेगा।
लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में जब हम किसी पे भरोसा करने लगते हैं तो वो व्यक्ति खुद अपना भरोसा दिखाने के लिए भी तैयार हो जाता है। जब हम भरोसा करते हैं तो यही है कि हम अगर इन चीजों पे भरोसा करते हैं तो हमें भरोसा मिलने लगता है। ये हमारे अंदर ये सक्सेसफुल होने के लिए ये पहली कुछ चीजें हैं जिन पे हमें विश्वास करना है। तो हमारा जो माइंड सेट है वो क्लियर होना चाहिए, यानी हमारा पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, बिलीफ सिस्टम हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। इसके बाद हमारे अंदर क्या होना चाहिए, मार्केट रिसर्च स्किल होनी चाहिए, मार्केट रिसर्च स्किल। इसमें आपको देखना होगा, मतलब हम लोगों को देखना होगा कि एक तो हमें सबसे पहले परफेक्ट प्लेटफॉर्म भी पता करना है। बहुत लोग जो आज शिकायत कर रहे हैं या जो कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ होता नहीं है, ये बहुत सारे मिथक है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ होता नहीं है, यहाँ जो पहले आ जाता है वो कमाता है, कंपनियां भाग जाती हैं। ये वो लोग शिकायत करते हैं जो लोग प्लेटफॉर्म का सही से रिसर्च नहीं कर पाते, प्लेटफॉर्म को सही से उसका अध्ययन नहीं कर पाते, उसकी जानकारी नहीं ले पाते। तो हमें प्लेटफॉर्म को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है हमें पता करना है। इसके बाद फाइंड परफेक्ट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि प्रोडक्ट दोस्तों अगर हमारा डिमांडेड प्रोडक्ट होगा, लोगों की आवश्यकता का प्रोडक्ट होगा और प्रोडक्ट हमारा वैल्यू फॉर मनी होगा तो हम उस पर आसानी से सक्सेस ले पाएंगे। और प्रोडक्ट जैसे मतलब वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए और प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, ये चीजों की हमें जानकारी लेनी है। और प्रोडक्ट डिमांडेड होना चाहिए, यानी हमारी लोगों की आवश्यकता का होना चाहिए, प्रोडक्ट आवश्यकता अनुसार, यानी ऐसा प्रोडक्ट जो 100% लोगों की आवश्यकता है। अगर ऐसा प्रोडक्ट होगा तो हम एक अच्छी सक्सेस ले पाएंगे। और प्रोडक्ट बिना नेटवर्क के भी बेचा जा सके, ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास होने चाहिए। तो प्रोडक्ट का भी हमें पता करना है कि कैसे प्रोडक्ट है। इसके बाद फाइंड आउट प्रॉस्पेक्ट, और हमें प्रॉस्पेक्ट का भी सर्च करते रहना। प्रॉस्पेक्ट के उसकी हमें हमारे अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि हम व्यक्ति को देखकर समझ जाएं कि इसे किस प्रोडक्ट की आवश्यकता है और क्या प्रोडक्ट हम इसे दे सकते हैं। वैसे तो टियान्सी का हर प्रोडक्ट हर व्यक्ति की आवश्यकता है। टियान्सी ने जो प्रोडक्ट बनाए हुए हैं ये बहुत अच्छी विशेषता है कि जो प्रोडक्ट टियान्सी ने बनाया हुआ है वो हर व्यक्ति की आवश्यकता है, 100% वो आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा टीसीएम पैथी है, जो 5000 वर्ष पुरानी हमारी चिकित्सा पद्धति है, वो हमारा जो 100 इयर्स हेल्दी लाइफ का जो प्रिंसिपल है वो हर व्यक्ति की आवश्यकता है। और अगर उसको हम फॉलो कर लेते हैं तो व्यक्ति 100% वो 100 ईयर हेल्दी लाइफ एंजॉय करेगा। 100 इयर्स को हम होल लाइफ कह सकते हैं, एंजॉय करेगा। और अगर हमने कुछ लोगों को, जैसे हमने यूज किया, हमने टीसीएम पैथी को अडॉप्ट किया, और अगर हम 4-6 लोगों को भी अडॉप्ट करा देते हैं और यही लोगों को केवल सिखा देते हैं कि ये टीसीएम पैथी जो हमारा 100 इयर्स हेल्दी लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें हर व्यक्ति को 5 लोगों को प्रमोट करना है, हर व्यक्ति को 5 लोगों को प्रमोट करना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आप अंपायर खड़ा कर लेंगे, बहुत बड़ा आपका अंपायर खड़ा हो जाएगा। सिर्फ इतना ही करना है कि हम यूज करें और 5 लोगों को इस पैथी को अडॉप्ट कराएं, टीसीएम पैथी। क्योंकि दोस्तों हम हर मामले में यूनिक है। जो हमारा टियान्स का जो, क्योंकि सप्लीमेंट प्रोडक्ट बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। और दोस्तों एक और अच्छी बात आपको बता दें, जो पीटर एफ ड्रकर जो फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, या इन्हें कहा जाता है फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, इन्हें जनक कहा जाता है, आधुनिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने कहा है देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन प्रोडक्ट। कंपटीशन प्रोडक्ट के बीच में नहीं है, कंपटीशन बिजनेस मॉडल के बीच में है, बिजनेस मॉडल के बीच में। और जो बिजनेस मॉडल हम आसानी से लोगों को डुप्लीकेट करा सकते हैं वो आदर्श बिजनेस मॉडल होता है। तो दोस्तों हमारे साथ दूसरी विशेषता और जुड़ी हुई है कि हमारा बिजनेस मॉडल तो आइडियल है, लेकिन साथ में हमारा बहुत बड़ा एक आइडियल है हमारी टीसीएम पैथी, जो 5000 वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति पे हम काम कर रहे हैं,
वो हमारा बहुत यूनिक है। तो इसे हमें लोगों को अडॉप्ट करना है और हमें अडॉप्ट करना है और लोगों को अडॉप्ट कराना है। केवल आप 5 लोगों, एक ही आप अपना कमिटमेंट ले लीजिए, एक अपना कमिटमेंट या हम कह सकते हैं एक शपथ ले लीजिए कि हमें कम से कम 5 लोगों को TCM पैथी अडॉप्ट करानी है और हर व्यक्ति को केवल इतना ही काम करना है। आप देखिए कि साल 2 साल में आप कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेते हैं और ये काम लगातार अगर आपने 5 साल कर लिया तो आप इस यूनिवर्स की बड़े से बड़ी चीजें आप अचीव कर सकते हैं, बहुत बड़े से बड़े सपने आप अचीव कर सकते हैं अगर ये काम केवल 5 साल करते रहे। ये काम हमें लगातार करना। इसके बाद दूसरा हमें क्या करना है, फाइंड प्रॉस्पेक्ट पॉइंट, पेन पॉइंट। और हमें क्या सर्च करना है, एक हमारे अंदर ये बहुत अच्छी स्किल होनी चाहिए कि प्रॉस्पेक्ट का पेन पॉइंट हमें सर्च करना है, उसका पेन पॉइंट हमें पता करना है। ये उसका जो पेन पॉइंट होता है ना, ये हमारा एक बहुत अच्छा USP होता है। जो पेन पॉइंट होता है, कहते हैं ना दुखती रग पे हाथ रखना, पेन पॉइंट हमें पता करना। ये हमें हमारे अंदर एक बहुत अच्छी ये स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए, ये हमें डेवलप करनी पड़ेगी। और ये भी डेवलप होगी उसी तरह से कैसे, जब आप काम लगातार करेंगे। यहाँ पे एक शब्द आता है रिपीटेड, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिपीटिंग करते हुए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को की प्रोग्रामिंग करा सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो स्किल है हमारा, जो दूसरी हमारी आवश्यकता है या होनी चाहिए हमारे अंदर एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए, सिस्टम की स्किल भी हमें होना चाहिए। बहुत बार बताया जाता है, बहुत सारे लीडर्स बताते हैं कि गोल सेटिंग करनी है। और जो हमारी 4 बेसिक आते हैं, क्या 4 बेसिक, सबसे पहले तो हमें लिस्ट बनाने का तरीका पता होना चाहिए। इसमें 4 बेसिक में लिस्टिंग, इनवाइटिंग, STP, फॉलो अप एंड सेल्स ग्रोथ, ये आपका आता है। तो लिस्टिंग कैसे हमें लिस्टिंग करनी है ये हमें पता होना चाहिए। फिर उसका इनविटेशन कैसे करेंगे, इनविटेशन हमें पता होना चाहिए। फिर हम प्रेजेंटेशन करेंगे और प्रेजेंटेशन के बाद जो हम फीडबैक यानी फॉलो अप करते हैं वो बहुत जरूरी है। मतलब आप समझिए, जो फॉलो अप हम कर रहे हैं ना, फॉलो अप हमारा जो है एक इस तरह से होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे तो फिर आपका केवल उसी तरह से काम हुआ जैसे बंदर है ना, एक मक्के के खेत में घुसता है, केवल वो प्रोस्पेक्टिंग तो करता रहता है, भुट्टे तो तोड़ता रहता है, उसको लगता है कि हमने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, लेकिन लास्ट में जब खेत के बाहर निकलता है तो केवल उसके हाथ में 2 ही भुट्टे होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो हमें क्या करना है, फॉलो अप बहुत जरूरी। फॉलो अप जो होता है ना, ये उस तरह से है जैसे कि हमने फसल बो दी और फसल पक भी गई, हमने बोया और फसल, जैसे हमने किसी को प्लान दिखाया और उसको प्लान दिखाया, प्रोडक्ट का डेमो कराया, वो व्यक्ति तैयार भी हो गया, लेकिन हो सकता है उस दिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो या उस दिन वो आपको जज कर रहा हो, वो आपको भी जज कर सकता है प्रोस्पेक्ट, और आपने क्या किया, आपने फॉलो ही नहीं किया उसको। और जब हम उसे फॉलो नहीं करते, ये गलती करते हैं, तो क्या होता है कि वो, क्योंकि फसल तो पकी चुकी थी, अगर हम नहीं काटेंगे तो कोई और काटेगा, अगर हम नहीं काटेंगे तो कोई और काटेगा। इसलिए दोस्तों फॉलो बहुत जरूरी है, जिसको हमने, और फॉलो हमें लगातार फॉलो करते रहना है। कुछ लोग 2-2, 4-4 साल के बाद ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने 2-2 साल, 3-3 साल तक फॉलो अप किया, इसके बाद वो ज्वाइन हुए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद वही जो हमने कहा, लिस्टिंग आपको आनी है, इनवाइटिंग कैसे करनी, और इनवाइटिंग में हमें ध्यान रखना है, इनवाइटिंग बहुत शॉर्ट रखनी है, शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इसे हम किस फार्मूला कह सकते हैं, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। क्योंकि अगर हमने कॉलिंग में अगर उसको सब कुछ बता दिया, पूरा इतिहास बता दिया, क्योंकि आदमी पूछने की कोशिश करता है, बार बार पूछने की कोशिश करता है, और आपको भी दृढ़ रहना है कि हमें कुछ नहीं बताना, आपको क्यूरियोसिटी बना के रखनी है। अगर आपने कुछ भी बना दिया कि कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, ये करेंगे, तो फिर वो आपके पास आएगा नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने, क्योंकि लोगों का दिमाग है ना बहुत एडवांस चलता है,
और जानकारी नहीं होती, क्योंकि मार्केट में इतनी र्यूमर है, इसलिए जैसे ही आपने कुछ जरा सा भी चर्चा किया तो वो व्यक्ति फिर आपके पास नहीं आता है। तो इनवाइटिंग हमें बहुत शॉर्ट में करनी है, 1 मिनट की इनवाइटिंग होती है, कॉलिंग एंड इनवाइटिंग। ये हमें इसकी स्किल हमें सीखनी है। तो इसके बाद इसकी हम अपने यहाँ जब ट्रेनिंग करते हैं तो आपस में लोगों का प्रैक्टिस भी कराते हैं। इसके बाद प्रेजेंटेशन मैंने जो बता दिया आपको, फिर फॉलोअप, इसके बाद फॉलोअप एंड सेल्स क्लोजिंग। ये जो हमारी 4 बेसिक आती है, इस पे हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। 4 बेसिक पे 4 बेसिक पे बहुत अच्छा जम के काम करना चाहिए। तो क्योंकि ये बिजनेस का जान होता है, क्योंकि हमें रॉ मटेरियल मिलेगा लिस्टिंग से, फिर उस लिस्टिंग का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम लोगों को अपने साथ लाएंगे, उनको इनवाइट करेंगे, उनका प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर फॉलो अप करेंगे, ये करेंगे। इसके बाद गेटिंग स्टार्टेड यानी जो नए व्यक्ति हमारे आए हैं उनके साथ हम एनडीओ करना शुरू करेंगे। एनडीओ में भी हम यही 4 बेसिक सिखाएंगे, ये बहुत जरूरी है। इसके यानी उनको आगे का स्टेप हम उनका शुरू कराएंगे। इसके बाद डुप्लीकेशन, वो काम वही आपका शुरू हो जाता है कि कैसे हम डुप्लीकेट कराएंगे, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जो हम करेंगे वही हमारी टीम करेगी, जो कहेंगे वो नहीं करेंगे, जो हम करेंगे वो लोग करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको लीडरशिप, धीरे धीरे लीडरशिप आपको लोगों को देनी है, हैंडल करनी, वो भी डुप्लीकेशन है। आपको अपने से अच्छे लोग तैयार करने हैं। तो ये हमें एक स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है, ये सिस्टम स्किल है। इसके बाद बिहेवियरल स्किल, बिहेवियरल यानी व्यवहार कुशलता, ये बहुत जरूरी, व्यवहार कुशलता। इसमें हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, और ऑनेस्ट केवल मनी मैटर में नहीं, ऑनेस्ट होना चाहिए टाइम, टंग एंड मनी। टाइम, टंग एंड मनी, जो हमने टाइम लोगों को दिया है उसके लिए भी हमें ईमानदार होना चाहिए। हमने जो टाइम दिया है उससे 5 मिनट ही हमें पहले ही पहुंचना है। टाइम, टंग, और जो जवान दे दिया उसे भी हमें पूरा करना है। इसलिए सोच समझकर हम किसी को कोई कमिटमेंट करें, बहुत सोच समझकर, ऐसा कमिटमेंट ना करें जिसे हम पूरा ना कर सके। इसके प्रति हमें ईमानदार रहना, टाइम, टंग, मनी। इसके बाद आता मनी मैटर। आप सब लोग जानते हैं कि हमें किसी के साथ, और बहुत कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे उधारी के लेन देन है वो नहीं होने चाहिए। देखिए, इस पे भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और अगर हमने किया है तो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ। और क्लोजिंग में कतई किसी की हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। जितना पैसा दिया गया उसकी पूरी क्लोजिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो जो भी हमारी टीम है वो हम पर विश्वास करती है। पहले ही आपको एक स्किल बताया गया कि आप मतलब एक बिलीफ सिस्टम है, हमें अपलाइन पे विश्वास करना, और हमारी टीम हम पर विश्वास करती है, तो हमें उस विश्वास को कायम रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं कि अगर हमने कोई प्रोस्पेक्ट मिला दिया अपने अपलाइन से, तो वो पता चला कि प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा था, तो उन्होंने क्या किया, कुछ दिन टहला के अपने ही साथ ज्वाइन करा लिया, अपने ही साथ ज्वाइन करा लिया। हमारे अपलाइनों ने किया है, अपने साथ ज्वाइन करा लिया। ये नहीं करना है, क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति को लाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात है, छोटी सी गलती आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। एक छोटी गलती आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। इसके बाद बहुत भी हमें कॉम भी रहना, शांत रहना, हमें शांत भी रहना। मतलब शांत का मतलब शांति से कई चीज, शांत होने में बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो सबसे पहले आपको शांत रहने का मतलब, बहुत से मैटर में कभी कभी ऐसे मैटर आ जाते हैं जिनमें अगर हम थोड़ा सा बोलते हैं उस समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग, अगर थोड़ा सा बोलते हैं बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, बहुत सारे काम खराब हो सकते हैं। तो हम परिस्थिति के अनुसार ये भी करना है। और दूसरा, कमी बोलना है, लोगों की ज्यादा सुननी, क्योंकि सिद्धांत भी है, या आप अपने आप से समझ सकते हैं कि हमारे 2 कान होते हैं, इसका मतलब सुनने का काम ज्यादा करना है, और मुंह एक ही होता है तो बोलने का काम कम करना है। इसके बाद दोस्तों, हेल्पिंग एंड केयरिंग भी हमें होना चाहिए। हेल्पिंग एंड केयरिंग में बहुत सारा, केवल अपने टीम की तो केयरिंग और हेल्पिंग करनी ही करनी है, आम लोगों के प्रति भी हमें हेल्पिंग नेचर रखना चाहिए,
क्योंकि हमें तो बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है। तो जब अपनी आदत में ये डाल लेते हैं कि हमारा हेल्पिंग और केयरिंग नेचर आ गया। केयरिंग का मतलब केवल पैसे देने से नहीं है, हेल्पिंग का मतलब पहले पैसे देने से नहीं है, कई तरह से हम हेल्पिंग कर सकते हैं, कैसे भी हेल्पिंग कर सकते हैं। किसी को कोई आवश्यकता है, किसी को कोई आप सब लोग समझदार हैं कि हम कैसे कैसे हेल्पिंग कर सकते हैं। किसी को मान लीजिए कोई जरूरत है, किसी को आप मार्केट जा रहे हैं, कोई और जाना, किसी को सामान मंगाना पड़ोसी का, आप उसकी हेल्पिंग कर सकते हैं। कई तरह से आप हेल्पिंग कर सकते हैं। हेल्पिंग नेचर आपको एक हेल्पिंग की हैबिट हमें पैदा करनी, हेल्पिंग एंड केयरिंग। और इनर्जेटिक रहना, क्योंकि बुझे हुए दिए का कोई नमस्कार नहीं करता। जब लाइट जलती तभी सब लोग नमस्कार करते हैं। उगते हुए सूर्य को सब नमस्कार करते हैं, डूबते हुए सूर्य को कोई देखना नहीं चाहता। तो हमें एनर्जेटिक भी रहना है, हमेशा ऊर्जावान रहना है। इसके बाद गो गेटर, और खास तौर से गो गेटर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। गो गेटर हमेशा दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए, दृढ़ संकल्पित और महत्वाकांक्षी। हमेशा हमें महत्वाकांक्षी रहना चाहिए। वैसे तो लाइफ में भी अगर आप महत्वाकांक्षी रहते हैं तो आप लाइफ में ज्यादा अचीवमेंट लेते हैं। और जो लोग संतोषम परम सुखम और जितनी चादर उतने पैर फैलाइए, ये गोलियां खा के रहते हैं, वो लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पाते। बड़ा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो सोच लिया जितना मिल गया उसी में संतोष करना। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए तो महत्वाकांक्षी और एम्पावरिंग जो है बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसका हमें फॉलो करना है। इसके बाद हमें मेंटली भी स्ट्रांग होना है, मेंटली स्ट्रांग होना। इस बिजनेस में आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना। समय समय पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे आप लगता है कि हमें ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए। इस पे हमें बहुत मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आप सबसे पहले तो जो हम प्लानिंग करते, जब लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं, इनवाइट करते हैं, वहीं हमें जब ना सुनने को मिलती है तो हम वहां से डिमोलाइज हो जाते हैं। और दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर 1000 ना सुनने की क्षमता है तो आपको एचडी जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके अंदर 1000 ना सुनने की क्षमता है तो आपको एचडी जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना हमें मेंटली स्ट्रांग होना है। और आप समझिए कि अगर 3 बार असफल होने के बाद भी आप चौथी बार, यानी बार असफल होने के बाद, हम अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर आप 3 बार असफल होने के बाद चौथी बार उस काम को फिर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर लीडरशिप डेवलप हो गई है। आपका माइंडसेट, आप मेंटली स्ट्रांग हो गए, मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर हम कायदे से किसी का 3 से 4 बार फॉलो अप कर लेंगे तो वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। 100% वो 4 बार ना करके 5वीं बार आपके साथ आ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप 3 बार फेल होने के बाद चौथी बार वही काम कर रहे हैं तो आप समझिए कि आपके अंदर लीडरशिप डेवलप हो गई है, आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे हैं। तो हमें इतना मेंटली स्ट्रांग होना है, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम मेंटली स्ट्रांग कह सकते हैं या बेशरम कह सकते हैं, बोल्ड कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह के लोग हर तरह की बातें करेंगे। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई जॉब भी कर रहा है, अगर 50,000 की जॉब कर रहा है, और जब आप 50,000 की भी जॉब कर रहे हैं, किसी को अगर अपना पेस्ट और तेल शैम्पू जब उसको प्रमोट करने जाएंगे तो पता वो क्या कहेगा कि अब तेल शैम्पू बेचने लगे, अब तेल बेचने लगे। बहुत सारे आपको कटाक्ष मिले। इसलिए हमें मेंटली स्ट्रांग होने की बहुत जरूरत है। और दोस्तों हमेशा टीचेबल रहना, हमेशा टीचेबल रहना। टीचेबल का मतलब हमें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, और जब हम सीखने के लिए तैयार रहेंगे तभी हम अपने लोगों को सिखा पाएंगे। और यही इस बिजनेस में यही करना, यही सबसे बड़ी मेहनत, टीचेबल रहना, ईगोलेस रहना, ईगो नहीं आनी चाहिए। और खास तौर से अपनी ग्रो लाइन के साथ तो ईगो होना ही नहीं चाहिए। अपलाइन से एक बार आप कर सकते हो, लेकिन ग्रो लाइन के साथ ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी के साथ ईगो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जेब में एक ही चीज रह सकती है, या तो ईगो या पैसा। अब आप क्या चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है।
आप पैसा चाहते हैं तो ईगो को लात मारिए, और अगर पैसा नहीं चाहते हैं तो ईगो को संभाल कर रखिए। ईगोलेस रहना और हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड रहना। रिजल्ट ओरिएंटेड एक शब्द हम कहते हैं, एक शब्द होता है रोटी, ROTI, रोटी। रोटी का मतलब होता है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, यानी जो हमने, मनी मैटर नहीं करता है क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमेशा हमें रिजल्ट ओरिएंटेड रहना चाहिए। मतलब हम जब किसी का प्लान भी, किसी को फॉलो अप करते हैं तो वहां पे हमें हमेशा ABC मोड में रहना चाहिए। ABC मोड में, ABC मोड में रहना चाहिए। तो रिजल्ट ओरिएंटेड रहना चाहिए हमेशा। रोटी शब्द का हमें ध्यान रखना चाहिए। रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, मनी मैटर नहीं करता है। अगर आपने समय का ध्यान कर लिया, क्योंकि कहा जाता है कि जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, जो समय की कदर नहीं करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। तो हम केवल, आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जब हम प्लान दिखा रहे हैं, फॉलो अप ले रहे हैं, तो हमने कितना टाइम दिया है, यहाँ पे हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, ये शब्द हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो जब आप प्लान दिखाएंगे तो हमेशा आप ABC मोड में रहेंगे, यानी आप हमेशा, ABC का मतलब है यहाँ पर ऑलवेज बी क्लोजिंग, ऑलवेज बी क्लोजिंग, ABC मोड में, हमेशा ABC मोड में रहना। इसके बाद दोस्तों, कैरेक्टर भी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हर तरह के लोग होते हैं। हमारे साथ चूंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं और हमें घर घर जाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, सभी हैं। तो कैरेक्टर में भी दोस्तों, कैरेक्टर बहुत सारी चीजों से मिलकर बिल्ड होता है। कैरेक्टर बहुत सारी चीजों से मिलकर बिल्ड होता है। इसमें आपकी ऑनेस्टी भी आती है, आपका जो, जैसे हमने अभी आपको बताया कि टाइम, टंग एंड मनी, बहुत सारी चीजों से कैरेक्टर आपका मिलकर कैरेक्टर बिल्ड होता है। और कैरेक्टर एक बार अगर कहीं से आपका स्पॉइल हुआ, क्योंकि कैरेक्टर को बनाने में बहुत समय लगता है और बिगड़ने में 1 मिनट का समय लगता है, तो बहुत हमें इस मामले में भी सिंसियर रहना है। इसके बाद मार्केटिंग स्किल को भी हमें देखना है। मार्केटिंग स्किल में हमें देखते रहना है कि मार्केट का ट्रेंड जिस हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से हमें काम करना है। इसमें जैसे आज ऑनलाइन का, यानी डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो हमें डिजिटल काम करना पड़ेगा, हमें भी डिजिटली आना पड़ेगा। और डिजिटली काम करके, आज हम डिजिटली मीटिंग कर रहे हैं ना, हम लोग पूरे हिंदुस्तान के लीडर्स को हम सुन लेते हैं, तो डिजिटल होना पड़ेगा हमें। तो मार्केटिंग स्किल्स में हमें, जैसे हमें बहुत सारे ब्लॉग बनाना, वीडियोज बनाना, पोस्टर्स बनाना, स्टोरीज क्रिएट करना, इवेंट्स, और इसके बाद इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, और लाइव सेशन देना, ये सब हमें यहाँ पे सीखना पड़ेगा एक अच्छा और सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए। अब इसके बाद टाइम कितना हुआ दोस्तों? तो इसके बाद दोस्तों हम आपको कुछ चीजें बताएंगे, हम जो शेयर करेंगे आपके साथ, कैसे हम जो है लोगों को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेक्ट, कैसे हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्ट करने के लिए एक तो हमारे पास, चूंकि दोस्तों जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री MLM है, ये हमें केवल पैसा कमाना नहीं सिखाती है, हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। यहाँ पे जो फ्री में हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती। और दोस्तों अगर हम इतना नहीं कर पाएंगे, यानी अगर हम प्रोस्पेक्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी नए लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमें अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा, हमें अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। और नए लोगों को अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है आपका ड्रेसिंग सेंस, बहुत अच्छा तरीका है, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। तो इसके लिए हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ये हमारा 10 कोर स्टेप का एक पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं, हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है उसके अनुसार होना चाहिए। अगर हम हमारा ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर नहीं है, छोटी सी बात हम समझ सकते हैं कि अगर हम
आईएएस का इंटरव्यू देने जा रहे हैं और कुर्ता पजामा पहन के जाएंगे तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और 4th क्लास का अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं और कोट पैंट टाई पहन के जाएंगे तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ड्रेसिंग सेंस, यानी यहाँ पे जो हम प्रॉस्पेक्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। आप ट्रेन में चलते हुए देख सकते हैं, ट्रेनों में आप जा रहे हैं, अगर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा, आप स्मार्ट लुकिंग हैं तो लोग आपको सीट दे देंगे, और अगर आपके गंदे संदे कपड़े तो लोग आपको सीट नहीं देंगे। तो हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए और हमारा डिसेंट आउटलुक होना चाहिए, आउटलुक हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये कि हमारा बहुत पावरफुल टूल है, ऑलवेज बी स्माइलिंग, हमेशा हमारा जो फेस है ना स्माइलिंग होना चाहिए, ये बहुत हमारा पावरफुल टूल है। और बी फ्रेंडली, हमें लोगों के साथ मित्रवत रहने की कोशिश करनी चाहिए, मित्रवत रहना चाहिए, हमेशा मित्रता के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद सामने वाले व्यक्ति में हमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, सो इंटरेस्ट, सामने वाले व्यक्ति में हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए तो वो हमसे अट्रैक्ट होगा। इसके बाद स्टे कनेक्टेड, और लगातार कनेक्टिविटी में रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने किसी का फोन नंबर लिया, हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हमने उसका फोन नंबर लिया, किसी व्यक्ति का फोन नंबर लिया, तो हमें पहले तो कनेक्टिविटी बनानी है, हमें फ्रेंडशिप बनानी है। अभी हम प्लान नहीं दिखाएंगे, लेकिन स्टे कनेक्टिविटी, हमेशा हमें कनेक्टिविटी में रहना है। जब हम लगातार उसके संपर्क में रहेंगे तो हम अपना प्लान भी दिखाएंगे और उनको अपने साथ ज्वाइन भी कराएंगे। तो कनेक्टिविटी में हमें हमेशा रहना है। और हमारे पास विजिटिंग कार्ड भी होना चाहिए, लेकिन विजिटिंग कार्ड जो आपका होगा, विजिटिंग कार्ड में आप विजिटिंग कार्ड सिंपल से बनाइए, बहुत सारी चीजें ना लिखिए, कुछ भी मत लिखिए, आप केवल अपना नाम और अपनी नीस उसमें लिखिएगा, अपना नाम और नीस और मोबाइल नंबर। और नीस आपकी जितनी अट्रैक्टिव होगी उतना ही लोग आपसे अट्रैक्ट, नीस आपकी बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो नीस जब आप अट्रैक्टिव बनाएंगे तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, लोग आपको कॉल करेंगे। इसके बाद लोगों को बी ए सोल्यूशन प्रोवाइडर, आपको हमेशा सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना चाहिए। किसी प्रकार की समस्या आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी समस्या का सोल्यूशन देने की कोशिश करें। इसके बाद आंसर इन क्वेश्चन, लोगों को जब हम आंसर दें तो आंसर हमारा क्वेश्चन मार्क में होना चाहिए, उससे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें लोगों को इस तरह से हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे हमें लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए। इसके बाद एक चीज और हम लोग जानेंगे कि जब हम लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, और प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद, चूंकि हमने पहले लिस्टिंग किया, इनवाइटिंग किया, और इसके बाद हम प्रेजेंटेशन करते हैं, तो प्रेजेंटेशन करते समय हमें कुछ गोल्डन क्वेश्चंस हैं, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब बार बार उनको रिपीट नहीं करते हैं या बार बार उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। और जब हम ये गोल्डन रूल पूछ लेते हैं, गोल्डन क्वेश्चन पूछते हैं, तो गोल्डन क्वेश्चन पूछने के बाद क्या होता है, ये हमारा जो हम क्लोजिंग करते हैं, जब हम लोगों का फीडबैक लेते हैं, उस समय ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इन्हीं से आपकी क्लोजिंग हो जाती है। तो जैसे हम सबसे पहले पूछ सकते हैं, जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन देने से पहले पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। उनका कुछ ना कुछ आंसर आएगा जो उनका बड़ा सपना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछना है कि आपने यही सपना क्यों चुना है, ये सपना आपने क्यों चुना है। इसके बाद डू यू थिंक विद दिस प्रेजेंट जॉब, यानी आप जो वर्तमान में कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, क्या इस जॉब के साथ ये आपका सपना पूरा होगा।
इसके बाद उनका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो उसके बाद में पूछना है, अगर मान लो वो कहते कि नहीं, ठीक, अगर वो कहते नहीं तो फिर आपके पास विकल्प क्या है, और क्या विकल्प है? अगर आप इससे नहीं पूरा कर सकते तो दूसरा आपके पास क्या विकल्प है? इसके बाद हमें पूछना है कि भगवान ना करे आपका ये सपना ना पूरा हो तो आपको कैसा लगेगा? ये कुछ गोल्डन क्वेश्चंस हैं जो आप प्रेजेंटेशन से पहले आप पूछेंगे। तो ये आपको जब आप क्लोजिंग करने जाएंगे, क्लोजिंग करेंगे, एक तो हमारी ऑन स्पॉट क्लोजिंग होती है, इसके बाद जब क्लोजिंग करेंगे तो हमें हमेशा उसका सपना याद दिलाते रहना, हमेशा सपना याद दिलाते रहना। तो इस पे आप 100% आपको सक्सेस मिलेगी, निश्चित रूप से आप उस व्यक्ति की क्लोजिंग कर पाएंगे। क्योंकि हम अभी गलती क्या करते हैं, हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं जाना कि वो कुछ उसके कुछ ड्रीम है भी, कुछ सपने हैं भी, उसकी नीड क्या है, कुछ करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, लेकिन हम अपनी बात हमेशा बताते रहते हैं, अपनी बात हमेशा बताते रहते हैं। तो वहां पे हमारी क्लोजिंग, हम वहां पे सक्सेस नहीं ले पाते। और अगर आप भी कुछ इस तरह से काम करेंगे तो हमारा जो रेशियो अभी आ रहा, अभी आपका रेशियो अगर 10 में 2 आ रहा है तो 2-3 आ रहा है, तो आपका रेशियो बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। इन चीजों को जब हम फॉलो करें तो आपका रेशियो बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। ये हमें कुछ गोल्डन क्वेश्चंस जरूर पूछने हैं और ये हमारे दिमाग में हमेशा होने चाहिए। इसके साथ जब हम ये क्लोजिंग करेंगे तो हम 100% सक्सेस होंगे। और दोस्तों, इसके बाद 5 मिनट में हम आपको जो इस मंथ के जो ऑफर चल रहे हैं वो हम अभी डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले इस समय जो हमारे ऑफर चल रहे हैं, लेटेस्ट में भी हमारे जो प्रोटीन पे ऑफर आया, और प्रोटीन रियल में बहुत जबरदस्त है। प्रोटीन का मैंने बहुत कुछ उस पे पढ़ा, सर्च किया, बहुत स्टडी किया, बहुत जबरदस्त प्रोटीन है ये। और प्रोटीन का पहले तो हम लेना चाह रहे थे प्रोटीन का ही सेशन, लेकिन फिर मैंने प्रोटीन का नहीं लिया, लेकिन प्रोटीन बहुत जबरदस्त है। और दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये प्रोटीन, जैसे मार्केट में जो प्रोटीन मिल रहे हैं, जो 400-500 रुपए किलो का प्रोटीन मिलता है, आप बहुत अच्छे से लोगों का माइंड सेट कर सकते हैं कि दाल अरहर की लगभग 100-125 रुपए किलो, आप समझ सकते हैं 1 किलो दाल में कितना प्रोटीन निकलेगा। और हमारे प्रोटीन में केवल प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन्स भी हैं, विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, और बहुत सारे उसमें चीजें डाली गई हैं जो हमारी मसल्स बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा है। और जब हम मल्टीनेशनल कंपनी का कोई प्रोडक्ट देखेंगे, मल्टीनेशनल का हम केवल डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करेंगे, मल्टीनेशनल का प्रोडक्ट आप ट्रेडिशनल मार्केट में भी लेने जाएंगे तो 1 किलो प्रोटीन आपको कम से कम 3500 से 4000 का मिलेगा मल्टीनेशनल का, ट्रेडिशनल मार्केट में। तो दोस्तों हमारा प्रोटीन सस्ता पड़ रहा, क्योंकि 1795 का 1 किलो है, सॉरी आधा किलो, और उसमें आपको 15% डिस्काउंट में मिल रहा है। इसके बाद इस मंथ का ऑफर है कि अगर आप 3 लेते हैं तो 1 फ्री मिलेगा। तो आपको अगर प्लेटिनम है केवल तो लगभग 1200-1300 रुपए का आधा किलो प्रोटीन मिल जाएगा, बहुत सस्ता है। तो 3 पे आपको फ्री आपको मिल रहा है। दूसरा, इस समय इस मंथ का जो ऑफर है हमारा, जैसे एक तो ऑफर हमारा जो क्विक रैंक चेंज का चल रहा है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर है। अगर आप 400 बीवी का परचेजिंग करते हैं तो आपको लगभग 8000 समथिंग का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, 8000 समथिंग का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। इसके बाद नए व्यक्ति के लिए तो बहुत जबरदस्त है, और आप 1200 बीवी की स्पॉन्सरिंग करते हैं 2 या अधिक व्यक्तियों के साथ, 1200 बीवी की स्पॉन्सरिंग करते हैं तो लगभग 21000 का प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठ के काम करना चाहते हैं या अपना छोटा मोटा सेंटर, हेल्थ सेंटर, डेमो सेंटर बनाना चाहते हैं, तो 2 लाख रुपए से अगर आप अपना डेमो सेंटर बनाते हैं तो आपको 90,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। अगर 2 लाख रुपए से आप अपना एक डेमो सेंटर बनाते हैं तो आपको नेट प्रॉफिट 90,000 रुपए का है। एक ये प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें आपका क्विक रैंक चेंज और आपका डिस्ट्रीब्यूटर ऑफर, स्पॉन्सरिंग ऑफर, बोनस, ये सब आपको मिलेगा।
तो 90,000 रुपए का बेनिफिट है। दूसरा कश्मीर टूर और स्टार 6 एंड ब्लो के लिए और स्टार 7 के लिए कश्मीर टूर, जिसमें स्टार 6 एंड ब्लो के लिए 5,000 पीवी लेफ्ट 5,000 राइट करनी है, 7 के लिए 7,000 करनी है। और एक और अच्छी बात है कि अभी टूर जो था, आप ये जो कश्मीर टूर है इसे आप टर्की टूर में आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो आई थिंक जैसे पहले स्टार 8 तक के लिए टर्की टूर था, अब उसे आप स्टार 7 और 5 वाले में, यानी कोई भी व्यक्ति टर्की टूर क्वालिफाई कर सकता है अगर वो उतना बिजनेस कर लेता। जैसे स्टार 7 है, अगर 18,000 पीवी लेफ्ट और 18,000 राइट करेगा तो वो टर्की टूर क्वालिफाई कर लेगा। पहले ये टूर केवल स्टार 8 एंड अबव के लिए था। ये बहुत अच्छी बात है कि हम इन लोगों को भी टर्की का कन्वेंशन दिखा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ और अपनी ग्रो लाइन और अपनी अपलाइन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, क्योंकि हम अपनी ग्रो लाइन के साथ ही मिलकर काम करते हैं और ग्रो लाइन का हमें बहुत बहुत प्यार देना चाहिए। तो सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना सेशन यहीं पर एंड करना चाहूंगा। थैंक यू ऑल लीडर्स। थैंक यू तनु जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आज आपका सेशन बहुत ही ग्रेट नॉलेजफुल सेशन रहा। तो आप सभी को से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सर के लिए एक बार बहुत ही जोरदार तालियां। बहुत ही ग्रेट सेशन सर, थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट सर, थैंक यू। इसी कड़ी के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी की जोरदार तालियों के साथ अजय कुमार कुशवाहा सर को। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। वेलकम गुड सर, मॉर्निंग वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning. Very, very good morning. And thank you, leaders. हमारे गुरुजी आज नहीं है। शायद पैनल पर अभी नहीं है। ओके, गुरुजी हैं, एक बार हैंड रेज किए हैं। आप गुरुजी को बुला लो, फिर मैं आता हूँ। प्लीज। अरविंद जी पांडे जी ने हैंड रेज किया है। जी जी, अरे तनु जी सर हैं हमारे महागुरु पैनल पे। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ हम सभी के महागुरु मिस्टर अरविंद सर को, अरविंद पांडे सर को वेलकम करना चाहेंगे। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर। Very good morning all of you. Thank you ma'am for calling me. मैं तो पूरा सेशन सुना हूँ सर का, और एक्चुअली मैं होस्ट नहीं था इसलिए मैंने हैंड रेज कर दिया था। तो बहुत जबरदस्त सर ने आज सेशन लिया, लीडरशिप पे भी बात किया और सब चीजों पे एक एक चीजों को जैसे बच्चों को सिखाया जाता है। सर तो ऑलरेडी टीचर है और उसी भाव में इन्होंने पूरे पैनल में जुड़े लगभग 400 लोगों को सिखाने का प्रयास किया और बहुत बेहतरीन सेशन, बहुत पिन पॉइंट की चीजें, छोटी छोटी चीजों पे सर ने प्रकाश डाला है और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऐसे सभी लोग सीखते रहें और नए लोगों को सिखाते रहें, लोगों की लाइफ को चेंज करें, लोगों को कामयाब बनाएं। ज्यादा से ज्यादा हमें अचीवर बनाना है, कश्मीर टूर अचीवर बनाना है, उसके बाद इस्तांबुल टूर अचीवर बनाना है, रैंक चेंज अचीवर बनाना है। इस पे सभी लीडर्स फोकस करें। और एक हमारी सभी जितने भी पैनल में जुड़े हमारे हार्डकोर लीडर, कोर लीडर हैं, अभी हम लोग का ये पैनल 1000 पैक होना चाहिए। सभी लीडर्स पूरा एफर्ट डालेंगे शाम की 7 बजे की जूम मीटिंग को 1000 का पैक करने का, और किसी भी हालत में इसको पैक करना है। और जैसे ही पैक होगा, कल हमारे ग्रेट लीडर अजय जी ने बताया था, कुशवाहा जी ने, कि अगर पैनल को डबल कर दिया, जैसे अभी 400-500 लोग जुड़ते हैं, जिस दिन 1000 लोग जुड़ने लगेंगे तो पैनल पे जुड़े सभी लीडर्स का पे आउट डबल हो जाएगा। तो हम सभी को इस पे काम करना है।
नए लोगों को अपने सिस्टम से प्लग इन करना है और ऑटोमेटिक सिस्टम से काम हो और लोगों का बिजनेस हो, अचीवमेंट हो, कामयाबी हासिल हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं सभी लीडर्स को। बस सभी लोग मिलके एक सार्थक एफर्ट डालेंगे पैनल को पैक करने का। तो थैंक यू अरविंद सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। विश यू ऑल द बेस्ट, आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी बहुत बहुत हेल्दी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, गो एसडी सून। थैंक यू, जय जी। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, And ma'am. once again, invite Ajay Kumar Kuswaha, sir. Welcome, sir. थैंक यू। बहुत अच्छा आपकी होस्टिंग। हमारे गुरुजी पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पैनल को 1000 किया है और हम सबको आप बढ़ाने के लिए सब कुछ किए हैं और हम सब इसको नक करके 1000 पूरा कर देंगे। और इस पैनल की जो जूम पैनल है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल समझाऊं। जूम पैनल की सिंपल सा मतलब है, यदि आपके टीम से 10 आदमी जुड़ रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका पे आउट एवरेज 25,000 के आसपास जा रहा होगा। अगर आपके पैनल पे 10 लोग ही आ पा रहे हैं, आपका पे आउट 25 के ही इर्द गिर्द रहेगा, कहीं भी कभी 30 हो जाएगा, कभी 20 हो जाएगा। यदि आपके जूम पे 25 लोग जुड़ रहे हैं तो आपका पे आउट 50,000 और 1 लाख के बीच चला जाएगा। यदि आपके पैनल पर 50 आदमी प्लस जुड़ रहे हैं, आपका पे आउट 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक जा सकता है। जिस दिन आपके पैनल पे 100 से अधिक आदमी जुड़ेंगे तो आपका 2 से 5 लाख, 7 लाख तक एवरेज पे आउट जाएगा। इस जूम के हकीकत है। आज एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं, मेरे लोग लगभग 100-150 जुड़ते हैं तो मेरा पे आउट 7 लाख, 10 लाख तक जाता है। आज पांडे जी के यहाँ पर 500, 600, 400 आदमी जुड़ते हैं तो आज 40-50 लाख तक पे आउट जाता है एवरेज। हमें सिंपल फंडा है कि यदि अपने बोनस को बढ़ानी है तो हमें अपने लोगों को पैनल पर लेके आनी है। इसको बोलते हैं सिस्टम में प्लग इन शब्द। ये शब्द बहुत मार्मिक है और मैं अभी जहाँ बैठा हूँ अपने घर में, जस्ट मैं निकलने वाले बैठे हैं अभी, और सामने एक प्लग दिखा रहा हूँ आप लोग को। प्लग दिख रहा है, जैसे यहाँ से मैं इसको स्विच को ऑफ कर रहा हूँ, ऑफ कर लाइट बंद हो जाता है। और जैसे इस प्लग को निकाल शायद सर का नेटवर्क इशू है, इसलिए सर मीटिंग से लीव हो गए हैं। तो सेशन को कंटिन्यू करते हैं एंड नेक्स्ट इसी कड़ी में हम इनवाइट करना चाहेंगे सफी मोहम्मद सर को। जोरदार तालियों के साथ वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी वॉइस आ रही हो तो अपना माइक अनम्यूट करें। सफी मोहम्मद सर, वेलकम सर। तनु जी, अजय सर आ गए हैं, शायद कुछ कह रहे थे, बड़ी अच्छी चीज बता रहे थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी सर, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहुत ही शानदार सेशन रहता है सर का, तो जवाब ही नहीं है। मैं तो कोई भी सेशन मिस नहीं करता और वाकई में जो है बहुत जबरदस्त सेशन रहता है।
और आप टीचर हैं और हम स्टूडेंट हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही वंडरफुल सेशन और बहुत बधाई आज के सेशंस के लिए। जल्दी से आप गोल्ड लोन बने और एचडी बने, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड सर आ चुके हैं वापस, तो वेलकम सर, वेलकम अजय सर। थैंक यू मैम। बेसिक में आप तो दिखाते मैं ट्रक जो निकाल रहा था। वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम गुरुजी को, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, जिससे फोन हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो हमें क्या करनी है, अपने पूरे नेटवर्क को इसी तरह से प्लग इन करनी है सिस्टम में, ट्रिपल एस में। और ट्रिपल एस के जो आपका सबसे महत्वपूर्ण पैनल है, जो शाम को 7 बजे चलता है, दिन के 12 बजे चलता है, अपने पूरे नेटवर्क के लोगों को इसमें प्लग इन करनी है। और जितने ज्यादा लोग प्लग इन होते जाएंगे, आपका बोझ कम होते जाएगा, आपको मेहनत फील्ड में कम करनी पड़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ते जाएगा। ओके, थैंक यू। और आज की जो सेशन था हमारे अरविंद जी की, जबरदस्त, बहुत बढ़िया सेशन। और आप जो चीज बताते हैं, प्रैक्टिकली जो आप करते हैं फील्ड में, कहाँ मिस्टेक होता है, कहाँ गलतियां होती हैं, उन सबको आप दिखा देते हैं। बहुत बढ़िया सेशन रहा सर। और आपने जो एज ए टीचर, हमने शफी भाई ने सच कहा, एज ए टीचर आप सच में, हम लोग पढ़ाते हैं, हम सब सीखते हैं आपसे। और आपकी जो लिटरेचर है बहुत पावरफुल है, और सब लोग सीखते हैं। और 400 से अधिक पैनल पर लोग थे, सब लोगों ने सीखा। और मेरे बेस्ट विशेष है सर, आप एचडी हैं टीआरसी के। गो एचडी सर, थैंक यू वेरी मच। गो एचडी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट इनवाइट करना चाहेंगे एसके व्यास सर को। सर आप अनम्यूट हैं। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड मॉर्निंग। और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए और आपके लिए धन्यवाद। तो जैसे कि आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी होस्टिंग, वेरी नाइस। और जैसे कि आज बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर हमारे सिंह साहब का जो आज का जो प्रेजेंटेशन रहा, बाकी सिस्टम पे उन्होंने पूरी सिस्टम पे बात की। और जो उन्होंने बताया कि अपने जीवन के अनुभव, उन्होंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमें किन कामों को किस तरीके से करना चाहिए, जिससे हम बड़ी आसानी से उन रास्तों पर अच्छी तरीके से सफल हो सके। तो उन्होंने पूरे सिस्टम के साथ में एक तरीके से 10 कोर स्टेप को इतने बेहतरीन तरीके से और कई सारी चीजों को उन्होंने रिलेट कर करके बहुत बेहतरीन सेशन उन्होंने दिया। तो सर से भी मुझे मिलने का मौका मिला था आगरा में, आगरा आए हुए थे सर, पांडे सर के साथ में थे, पांडे जी के साथ में। तो मिलने का भी मौका मिला। बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति भी हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं। और बाकी आज आपका सेशन सर बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ बातें तो वाकई आज मुझे नई मिली हैं, जो पहली बार मिली। थैंक यू सर आपके इतने जबरदस्त सेशन के लिए। मैं आज आपके सेशन से बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट इनवाइट करना चाहेंगे अशोक बाबू सर को। वेलकम सर, वेलकम। 1 मिनट सर को अनम्यूट। वेलकम सर, वेलकम। आप अनम्यूट हैं। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया होस्टिंग कर रही हैं आप। और मैं गुरुजी से व्यक्तिगत तौर पे काफी कनेक्ट हूँ, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि ये वास्तव में गुरु हैं। और जो इनका पढ़ाने का तरीका है, अगर वो तरीके को वो अनाड़ी से अनाड़ी बच्चा भी अगर उन बिंदुओं पे लागू कर दे, लागू करना चाहे 1% ही करे, 1% भी करेगा, तो बहुत जल्दी लीडर बन जाएगा। इन्होंने जिस तरह से जितना क्लियर ढंग से बताया है और हृदयंगम करने लायक चीजें, तो मैं आपको एक तो एचडी होने की शुभकामना देता हूं। और इतने बढ़िया आपकी जो कोचिंग चल रही है, उस कोचिंग से हमारा भी बहुत उद्धार होगा।
ऐसी कामना करता हूँ। हमारे बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू। आपने बहुत बढ़िया ढंग से सेशन लिया सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट इनवाइट करना चाहेंगे हिमांशु देवरॉय सर को। वेलकम सर, वेलकम सर, आप अनम्यूट हैं। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू तनु सचान जी, आपका बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग चल रही है और इस इम्पोर्टेंट समय का जो सेशन है 7 बजे का, ये आप होस्टिंग कर रहे हैं, ये बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही अच्छा मौका मिला है आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड कीप इट अप। और बात करें आज के अरविंद सर, गुड मॉर्निंग। अरविंद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और साथ साथ में हमारे अरविंद कुमार पांडे सर को भी गुड मॉर्निंग, कुशवाहा सर को गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्रणाम। जबरदस्त सर, आपका हमेशा कुछ नए तरीके से सेशन रहता है, बहुत ही फैंटास्टिक, लाजवाब, मजा आ जाता है। और आपने आज 4 बेसिक्स और जो 10 कोर स्टेप्स वगैरह में इतना डिटेल में बताया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और आपने विजिटिंग कार्ड में जो गाइडलाइन दिया कि भाई बहुत ज्यादा चीजें ना लिखे, क्योंकि मैंने बहुत सारे विजिटिंग कार्ड देखा है, उसमें पूरे आगे पीछे पूरा भरा हुआ रहता है, क्या क्या बीमारियां ठीक करते हैं, क्या क्या ठीक करते हैं। तो आपने कहा कि भाई इसको ज्यादा से ज्यादा चीज ना लिखे, ये बहुत ही अच्छा गाइडलाइन दिया है आपने। और आपने ये भी कहा कि भाई स्टे कनेक्टेड, बी ए सोल्यूशन प्रोवाइडर, बी रोटी ओरिएंटेड, एबीसी मोड में रहे हमेशा, बी मेंटली स्ट्रांग, महत्वाकांक्षी बने, गो गेटर हो जाए, एनर्जेटिक हो जाए, बी केयरिंग, बी काम एंड कूल। ये सारी चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे टीएंस के लाइफ में, एंड दे ईच ऑफ दिस पॉइंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर जबरदस्त सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को प्रणाम। तनु मैम, बैक टू यू। ग्रेट होस्टिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड और यदि किसी लीडर को अपने रिव्यू शेयर करने तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। क्या हुआ?